Hello students and welcome to the third lecture of straight line. In the last class we discussed about what are the condition of parallel lines and perpendicular lines. So let me revise that concept very quickly. Suppose there are two lines L1 and L2. L1 has the equation a1x plus b1y plus c1 is equals to 0 and L2 is a2x plus b2y plus c2 is equals to 0. Then if L1 is parallel to L2, this implies a1 by a2 is equals to b1 by b2. And if this L1 is perpendicular to L2, then A1, A2 plus B1, B2 is equals to 0. So this is the condition of two lines are parallel and perpendicular. Okay. So in this class, let us discuss the point of intersection of a line. Point of intersection. So let us suppose there are two lines, point of intersection. This is a line L1 and this is another line L2, and these two lines are meet or intersect at the point H, K. Suppose the first line is, let's say, L1 and this is another line L2. Okay, and the equation of L1 is a1x plus b1y plus c1 equals to 0. The equation of L2 is a2x plus b2y plus c2 is equals to 0. And here are our two lines. Then, and this is the H, K is the point of intersection. Then we can solve. देखो ये दो तो मतलब लीनियर इक्वेशन है. लीनियर इक्वेशन हम किसी तरह सॉल्व करके H और K की वैल्यू निकाल सकते हैं. H और K की वैल्यू हम निकाल सकते हैं. So to H is equals to, by the cross multiplication method that we have studied, cross multiplication method. Cross multiplication method, we know that the H is equals to the x coordinate. X क्या होता है? Cross multiplication method. तीन ठो method पढ़े थे तुम in your class 10th, that is elimination, substitution and cross multiplications, or this is अपसारण, प्रतिकल्पना and vajra gunana. So this is cross multiplication. Third one is vajra gunana method. So H is equals to b1 c2 minus b2 c1 by a1 b2 minus a2 b1. The K is equals to simply C1 A2 minus C2 A1 by A1 B2 minus A2 B1. So this is the formula for the x-axis and y-axis. Let's do a simple example here. एक छोटे सी एग्जाम्पल. सपोज दो ठो लाइन है L1. सपोज 3x minus 4y plus 5 is equals to 0, and another line is let's say x minus y plus 3 is equals to 0. Here there are two lines, and what will be the point of intersection of these two lines? Point of intersection, the x coordinate of the point of intersection is simple a1 b2 b1 c2 minus b2 c1 by a1 b2 minus a2 b1. Let us first identify what is a1 b1 and c1, a2 b2 and c2. So simply a1 is 3, B1 is your minus 4 and C1 is 5, and A2 is your 1, B2 is minus 1 and C2 is 3. So what is H? The H is equals to simple A1 B2 B1 C2 minus B2 C1. So minus 4 times the 3 minus B2 C1 मतलब minus 1 times the 5 by A1 B2 minus A2 B1, that is 3 times the minus 1 minus 1 times the minus 4, and the answer will be, this is minus 12 and plus 5, so minus 7
by this is -3 and +4 is I think 1. So -7 is the x coordinate, and what will be the y coordinate? K is equals to the formula for K is C1A2 minus C2A1. C1A2 minus C2A1. So 5 times 1 minus 5 times the 1 minus A2 C2A1 means 3 times the 3. 3 times the 3 by A1B2 minus 3 times your -1 minus 1 times your -4. सिंपल फार्मूला पुट कर दो यार, ठीक है। तो ये है 5 माइनस कितना है 9, 5 माइनस 9 होता है -4 और ये है 1, मतलब सिंपली -4। देखो तो द कॉमन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस टू लाइन्स इज -7, -4। तुम चेक ऐसे हम चेक भी कर सकते हैं, यहाँ -7 और यहाँ -4 भी पुट कर सकते हैं ताकि ये सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है हम चेक करने के लिए। देखो सपोज लेट अस पुट x की जगह -7 और इसकी जगह 4 पुट करो, तो 3 टाइम्स -7 इज -21, 4 टाइम्स -4 इज -16, बट इसके आगे भी माइनस तो +16 +5, देखो 0 हो रहा है, बहुत बढ़िया। और इसी पॉइंट में भी वही पॉइंट अगर पुट करोगे तब भी 0 होगा, -7 +4 +3 0। So this is the point of intersection of two lines. So pause the video to note it down. Next we are going to discuss concurrent lines. Okay. Definition है, if P is a common point. P is a common point to or common point of lines L1, L2, L3, Ln. Okay, let ये n to line का एक common point है, that is P. Then we can say the lines are then the lines L1, L2 sub Ln are concurrent. मतलब 3 से ज़्यादा लाइन अगर एक पॉइंट पे मीट करते हैं, सपोज 3 लाइन्स है कि 4 लाइन्स है, सो देयर आर 4 लाइन्स, एक L1 है, L2 है, L3 है, L4 है, ठीक है। उसको फिर वो नाम मत देना है, ये तो सेम L1 मतलब ये पूरा का पूरा लाइन, ठीक है। इफ दिस लाइन आर इंटरसेक्ट एट वन पॉइंट देन द लाइन्स आर सेड टू बी कॉन्करेंट लाइन्स। तो कॉन्करेंट लाइन्स का देयर इज ए कॉमन पॉइंट होता है, देयर इज ए कॉमन पॉइंट ऑफ कॉन्करेंट लाइन्स। कॉन्करेंट लाइन्स का एक कॉमन पॉइंट होता है हमेशा। लेट हम 3 तो लाइन के बारे में डिस्कस करें। थ्योरम L1 A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल टू 0, L2 है आपका A2x प्लस B2y प्लस C2 इज इक्वल टू 0 एंड L3 इज योर A3x प्लस B3y प्लस C3 इक्वल टू 0। देयर आर 3 लाइन्स आर देयर। Okay, L1, L2, L3 are 3 lines. ठीक है, L1, L2, L3 are 3 lines, and L1, L2, L3 are intersect. Sorry, L1, L2, and L3 are concurrents. When they are concurrents, if they are concurrents, इसका कंडीशन है if
if a1 b1 c1 or a2 b2 c2 a3 b3 c3 का डिटर्मिनेंट is equals to 0 provided that the slope of L1, L2 and L3 are not equal. Provide that slope of the L1, L2 and L3 are not equal. इसका वैल्यू हम निकाल भी सकते हैं, देखो मतलब L1, L2 एंड L3 आर कॉन्कोरेंट कब हो सकता है? कॉन्कोरेंट इफ A1 इंटू B2C3 माइनस B3C2 प्लस A2 इंटू B3C1 माइनस B1C3 प्लस A3 इंटू B2C1 माइनस 3 के बाद 1 होता है B1C2 माइनस B2C1 इज इक्वल्स टू 0. इफ दिस इज इक्वल्स टू 0 है देन वी कैन से द लाइन्स आर कॉन्कोरेंट. आपको दिख रहा है कि नहीं? L1, L2 and L3 are concurrent. The A1 into B2C3 minus B2C3 minus B3C2, A2 into B3C1 minus B1C3, sorry, plus A3 into B1C2 minus B2C1. अगर 0 होगा, अगर ये 0 होगा, then the lines are concurrent. Otherwise the line is not concurrent. इसको हम एक simple form में लिख सकते हैं, or we can say summation of this A1 times B2C3 minus B3C2 is equals to 0. A1 into B2C3 minus B3C2 is equals to 0. देखो समेशन का यही मतलब है. यहाँ टोटल 3 तो लाइन है और हर केस में A1, A2, A3 है, B1, B2, B3 और C1, C2, C3 है. तो इसका फर्स्ट टर्म मतलब A की जगह 1, सेकेंड टर्म के लिए A की जगह 2, A2 होगा तो B3 हो जाएगा. मतलब देखो 1 की जगह 2 हो जाएगा तो 2 की जगह 3, 3 की जगह 1, 3 की जगह 1, 2 की जगह 1. मतलब if 1 is 2 then 2 becomes 3 and 3 becomes 1. ठीक है, फर्स्ट 1 केस में वही है, कोई प्रॉब्लम नहीं. फिर हर केस में एक 3 बार लिखना है. मतलब फर्स्ट A1, देखो ये A1 B2C3 माइनस B3C2, उसके बाद 1 की जगह 2, 2 की जगह 3, 3 की जगह 1 और 3 की जगह 1 और 2 की जगह 3 लिख दो तो ये हो जाएगा A2 इंटू B3C1 माइनस B1C3. उसके बाद अगेन इसी टर्म में 2 की जगह 3, 3 becomes 1, 1 becomes 2, 1 becomes 2, 3 becomes 1 लिख दो तो ये हो जाएगा A3 B1C2 माइनस B2C1. ठीक है, सो दिस इज द फॉर्मूला आपका एक. और ये तीनों कॉन्करेंट का तो यही कंडीशन है और पैरेलल का भी यही सेम कंडीशन है. सेम मतलब अगर हम बोलेंगे कि L1, L2 एंड L3 आर सिंपल पैरेलल, तो इसका भी कंडीशन है कि वही आपका द समेशन ऑफ A1 इंटू B1C2 माइनस B2C1 मतलब एग्जैक्टली यही, दिस इज इक्वल्स टू वही है. ठीक है, ये तीनों क्वांटिटी सेम है, दिस एंड दिस ऑल सेम है, इक्वल्स टू 0 प्रोवाइडेड स्लोप ऑफ L1, L2 एंड L3 आर इक्वल. स्लोप अगर इक्वल होगा मतलब कोई भी 2 पैरेलल होंगे तो तीनों पैरेलल हो जाएंगे. इनमें से कोई भी 2 पैरेलल होंगे तो वो तीनों ऑटोमेटिकली पैरेलल हो जाएंगे. सो नोट कर लो इसको. ओके, सिंपल. द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट,
तीन ठो लाइन है, ये तीन ठो लाइन अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, एक कंडीशन है, देखो कि कंडीशन है कि A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3 का डेट 0, इसका वैल्यू है यही जो लिखा हुआ है आपको, एंड दिस इज नथिंग बट वही 0, मतलब यही सेम है। दिस इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ A1 टाइम्स B2 C3 माइनस B3 C2, ठीक है। अगर यही चीज़ 0 हो रहा है तो ये तीन ठो लाइन दो ठो चीज़ हो सकता है, आइदर पैरेलल होगा नहीं तो कंकरेंट होगा। सो L1 L2 L3 आर पैरेलल हो सकता है और L1 L2 L3 आर कॉन्कोरेंट हो सकता है। किसी भी टू लाइन का स्लोप अगर सेम है और ये कंडीशन सेटिस्फाई पैरेलल होगा, इफ स्लोप ऑफ एनी टू लाइन्स आर इक्वल और यही कंडीशन भी सेटिस्फाई होना चाहिए। अगर सिर्फ दो लाइन का स्लोप अगर आ रहा है तो ये कभी पैरेलल होगा नहीं। और कंकरेंट कब होगा? अगर L1 L2 L3 सबको स्लोपर्स इक्वल लिख देते हैं, स्लोप्स आर सिंपल इक्वल। कंकरेंट होगा इफ स्लोप्स आर डिफरेंट, ओके। slope of all the three lines are different, ओके। तो यही कंडीशन है, नोट इट डाउन। Then let us discuss about the family of lines. Family of lines मतलब वैसे बहुत सारे लाइन्स, ठीक है, बहुत सारे लाइन्स समझ रहे हो? फैमिली का मतलब पता है तो सपोज L1 एंड L2, यहाँ भी दो ठो लाइन है, A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल्स टू 0 एंड A2x plus B2y plus C2 equals to 0. These are two lines. Then suppose दो केस में है। फर्स्ट केस वन आपका L1 is parallel to L2। अगर L1 parallel to L2 है then दिस L1 प्लस लैम्बडा L2 इज इक्वल्स टू 0। इसका मतलब क्या है कि A1x प्लस B1y प्लस C1 प्लस लैम्बडा इंटू A2x प्लस B2y प्लस C2 इज इक्वल्स टू 0, प्लस C2 इज इक्वल्स टू 0 इज द इक्वेशन ऑफ family of lines, is the equation of family of lines which are parallel to each other or parallel to L1 and L2। अगर L1 और L2 पैरेलल लाइन है तो ये जो फॉर्मूला है A1x प्लस B1y प्लस C1 प्लस लैम्बडा टाइम्स A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल्स टू 0, ये सब एक फैमिली ऑफ पैरेलल लाइन्स है which are parallel to each other, सब एक फैमिली ऑफ पैरेलल लाइन्स है। ऐसे देखो अगर L1 इज पैरेलल टू L2 है तो भी दोनों का स्लोप इक्वल है, मतलब A1 बाई A2 इज इक्वल्स टू B1 बाई B2 है। यही आपको गिवन दिया, इसका थोड़ा देखते हैं, ठीक है। और इस लाइन का स्लोप क्या है, इसको अगर हम ध्यान से लिखेंगे, ये जो L1 प्लस लैम्बडा L2 लिखा है मतलब A1x प्लस B1y प्लस C1 प्लस लैम्बडा इंटू A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल्स टू 0 लिखा है। तो x का कोफिशिएंट क्या है यहाँ? x का कोफिशिएंट ऑब्वियसली A1 प्लस लैम्बडा A2, ठीक है, A1 प्लस लैम्बडा A2। y का कोफिशिएंट क्या है? तो y का कोफिशिएंट इज ऑब्वियसली B1 प्लस लैम्बडा B2।
और द कांस्टेंट टर्म है C1 प्लस लैम्बडा C2 इज इक्वल्स टू 0, इज इक्वल्स टू 0 है। तो इसका स्लोप क्या हो गया? इसका स्लोप द स्लोप ऑफ द लाइन इज इक्वल्स टू, सिंपल हो गया आपका, माइनस ए बाई बी होता है माइनस ऑफ एक्स कोफिशिएंट ए वाई, माइनस ऑफ एक्स का कोफिशिएंट बाय वाई का कोफिशिएंट, मतलब A1 प्लस लैम्बडा A2 बाय B1 प्लस लैम्बडा B2 है, A1 प्लस लैम्बडा A2 एंड दिस इज नथिंग बट दिस इज इक्वल्स टू जो M1 है, मतलब फर्स्ट M1 देखते हैं, M1 कितना है? M1 आपका माइनस A1 बाई B1 है और M2 कितना है आपका? माइनस A2 बाई B2 है। M1 है माइनस A1 बाई B1, ये माइनस तो छोड़ दिया है, माइनस A1 बाई B1 और M2 है माइनस A2 बाई B2, यानी ये तीनों एग्जैक्टली सेम है। इसको हम आराम से प्रूव भी कर सकते हैं ये तीनों सेम कैसे हैं। ठीक है, देखो एक सिंपल फॉर्मूला था कि कल भी हम डिस्कस किए थे कि अगर A बाई बी इज इक्वल्स टू C बाई डी है तो वी कैन से इज इक्वल्स टू A प्लस सी बाई बी प्लस डी भी लिख सकते हैं। ठीक है, इक्वल्स टू A प्लस सी बाई बी प्लस डी भी लिख सकते हैं। ये हम लास्ट क्लास में भी एक डिस्कस किए थे शायद। ठीक है, यहाँ इन दोनों का तो स्लोप सेम है, मतलब हम तो लिख सकते हैं कि माइनस A1 बाई B1 इज इक्वल्स टू माइनस A2 बाई B2 लिख सकते हैं। ठीक है, इतना बात समझ में आया? तो इज इक्वल्स टू इन यहाँ दोनों तरफ लैम्बडा मल्टीप्लाई करते हो तो ये माइनस लैम्बडा A2 बाय लैम्बडा B2 हो सकता है। तो यहाँ में क्या मिला? माइनस A1 बाई B1 इज इक्वल्स टू माइनस लैम्बडा A2 बाय लैम्बडा B2 मिला। अगर इसी फॉर्मूला के अंदर का हम इक्वल कर दें, मतलब तो इज इक्वल्स टू ये भी तो है ऑलरेडी, तो माइनस A1 बाई B1 इक्वल्स टू माइनस लैम्बडा A2 बाय लैम्बडा B2 इज इक्वल्स टू माइनस A1 माइनस लैम्बडा A2 बाय B1 प्लस लैम्बडा B2। इस माइनस को अगर कॉमन आएगा तो माइनस A1 बाई B1 इज इक्वल्स टू माइनस लैम्बडा A2 बाय लैम्बडा B2 इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ A1 प्लस लैम्बडा A2 बाय B1 प्लस लैम्बडा B2 है, माइनस B1 प्लस लैम्बडा B2 है। तो इन सबको थोड़ा सा कंपेयर करो, दिस इज इक्वल्स टू दिस, दिस इक्वल्स टू दिस हुआ, ये इसके साथ भी इक्वल है, तो इसका मतलब हम लिख सकते हैं माइनस A1 बाई B1 इज इक्वल्स टू माइनस A2 बाई B2 इज इक्वल्स टू माइनस A1 प्लस लैम्बडा A2 बाई B1 प्लस लैम्बडा B2, लैम्बडा B2। सो स्लोप ऑफ ऑल द लाइन्स, देखो यहाँ जो है एक छोटी सी बात, वेयर दिस लैम्बडा इज बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर, ये कोई भी रियल नंबर हो सकता है। ठीक है, ये एक केस गया, फर्स्ट केस नोट कर लो इसको। हम अभी आते हैं सेकंड केस पे। सेकंड केस है L1 इज नॉट पैरेलल टू L2, मतलब L1 एंड L2 आर इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइन का क्या मतलब है? दोनों एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे एंड लेट P जिसका कोऑर्डिनेट h, k है बी द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, point of intersection of be the point of intersection of the line L1 and L2। इसका मतलब है क्या? अगर ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है तो P is a point on the L1 and P is a point on the L2 as well। if P is a point on the L1 तो इसको थ्योरम क्या है? थ्योरम है इफ केस 2 का, पहले हम थ्योरम लिख देते फिर प्रूव करते।
कि केस 2 में एक केस 2 है पैरेलल वाला, सॉरी नॉट पैरेलल, L1 इज नॉट पैरेलल टू L2, तो यहाँ लिख दो कि L1 प्लस लैम्बडा L2, इसका मतलब A1x प्लस B1y प्लस C1 प्लस लैम्बडा इंटू A2x प्लस B2y प्लस C2, B2y plus C2 is the family of lines, family of lines passing through the point of intersection of L1 and L2. तो A1x प्लस B1y प्लस C1 प्लस लैम्बडा इंटू A2x प्लस B2y प्लस C2 इज इक्वल्स टू 0 is the family of lines passing through the point of intersection of L1 and L2, passing through the point of intersection of L1 and L2, ठीक है। तो P H कमा K कोई भी is the point of intersection L1 L2 available in L2. So obviously P is a point on the L1 and P is a point on the L2 as well. अगर P L1 का पॉइंट है तो L1 का जो इक्वेशन उसको सेटिस्फाई होना चाहिए, मतलब obviously P is a point on L1, so क्या होना चाहिए A1H प्लस B1K प्लस C1 इज इक्वल टू 0 होना चाहिए, एंड P इज ए पॉइंट ऑन L2 भी है, सो A2H प्लस B2K प्लस C2 इज इक्वल टू 0 भी होना चाहिए। इन दोनों इक्वेशन को अगर हम ऐड करेंगे, एडिंग दिस टू इक्वेशंस, ये इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2 है। तो हमें प्रूव करना है कि ये जो लाइंस है, फैमिली ऑफ लाइन है, A1x प्लस जो है B1 y प्लस C1 प्लस लैम्बडा इंटू A2x प्लस B2 y प्लस C2 इज इक्वल टू 0। यहाँ पुट H कमा K on the given equation, इस इक्वेशन पे इसे पुट कर दो तो क्या होगा A1H प्लस B1K प्लस C1 प्लस लैम्बडा इंटू A2H प्लस B2K प्लस C2, तो ये तो ऑटोमेटिक 0 हो रहा है, प्लस लैम्बडा इंटू दिस इज ऑल्सो 0, तो ये टोटल सिर्फ इसी इक्वेशन पुट कर दो, ठीक है। टोटल कितना हो रहा है 0 हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि H कमा के जो P पॉइंट है is a point on the line this A1x plus B1y plus C1 plus lambda into A2x plus B2y plus C2 is equals to 0। सो ये जो सिस्टम है, दिस सिस्टम ऑफ लाइन और फैमिली ऑफ लाइन, दिस फैमिली ऑफ लाइन इज ए पासिंग थ्रू द पॉइंट H, K, इज पासिंग थ्रू द पॉइंट H, K। तो यही यहाँ से प्रूव हो रहा है, ठीक है। मतलब सिंपल, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, अगर छोटी सी बात में बोलेंगे तो एक लाइन दिया है L1 और एक लाइन दिया है L2, तो इसका जो फैमिली ऑफ लाइंस है वो L1 प्लस लैम्बडा L2 आपका फैमिली ऑफ लाइंस है। ये फैमिली ऑफ लाइंस पैरेलल कब होगा? दिस फैमिली ऑफ लाइंस आर पैरेलल if L1 parallel to L2 and are concurrent, are simple concurrent if L1 concurrent and passing through the same point,
एंड कॉन्करेंट इफ L1 इज नॉट पैरेलल टू L2 एंड इफ कॉन्करेंट होगा, ठीक है, और पैरेलल कब होगा, इफ L1 इज पैरेलल टू L2, L1 अगर पैरेलल टू L2 है तो ये भी पैरेलल होगा। अगर ये कॉन्करेंट होगा, कब कॉन्करेंट होगा, L1 इज इंटरसेक्टिंग टू L2। देखो ये L1 प्लस लैम्बडा L2 जो मतलब ऐसे कंफ्यूज हो गए, ये बहुत सारे लाइंस का एक ही टाइम का एक ही बार में लिखा गया इक्वेशन है। तो लैम्बडा का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, लैम्बडा का वैल्यू 0 होगा तो एक इक्वेशन, लैम्बडा का वैल्यू 1 होगा तो अनदर इक्वेशन, लैम्बडा का वैल्यू 2 होगा तो और एक इक्वेशन, लैम्बडा का वैल्यू 5 होगा तो और एक इक्वेशन, ये √2 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो लैम्बडा का वैल्यू वेरी करता है, लैम्बडा इज बिलोंग्स टू R, ठीक है, लैम्बडा इज बिलोंग्स टू R, इस केस में लैम्बडा बिलोंग्स टू R है। तो लैम्बडा का वैल्यू चाहे कुछ भी हो, ठीक है, ये एक इक्वेशन ऑफ लाइन एक लीनियर इक्वेशन होगा, और लीनियर इक्वेशन ये बहुत सारे लीनियर इक्वेशन, बहुत सारे लाइंस का इक्वेशन, दे आर पैरेलल टू ईच अदर इफ L1 इज पैरेलल टू L2 एंड दे आर इंटरसेक्टिंग टू ईच अदर, मतलब दे आर कॉन्करेंट टू ईच अदर, ऐसा दे आर कॉन्करेंट होगा इफ L1 इज नॉट पैरेलल टू L2, ठीक है, नोट कर लो इसको। Then we are going to discuss distance between a line and a point। एक पॉइंट और एक लाइन के बीच में डिस्टेंस, let L be a line ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0 एक लाइन का इक्वेशन है, एंड p x1 y1 इज ए पॉइंट, एक पॉइंट है x1 y1, एक लाइन है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल्स टू 0। सिंपल। तो कहानी कह रहे हैं, यहाँ एक लाइन है जो कि है ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0, एक पॉइंट दिया हुआ है x1 y1 p पॉइंट, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस निकालना है, ये d सपोज। तो ये डिस्टेंस की फॉर्मूला होती है, डिस्टेंस की फॉर्मूला होती है ax1 प्लस by1 प्लस c इसका मॉड बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का रूट ओवर। क्या करना है, सिंपल, जो ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0 जो इक्वेशन है, x की जगह x1 पुट कर देना है, y की जगह y1 पुट कर देना है, ठीक है, x की जगह x1, y की जगह y1 पुट कर देना है, और उसका मॉड बाय अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। दिस इज द फॉर्मूला फॉर द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट एंड ए लाइन L, एक लाइन और एक पॉइंट के बीच में यही फॉर्मूला है डिस्टेंस की, ठीक है। अगर इसी बीच में हम डिस्कस किए थे, देखो क्या डिस्कस किए थे कि हम डिस्टेंस बिटवीन लाइन एंड ए ओरिजिन, लाइन एंड ए ओरिजिन, ये हम डिस्कस किए थे। ओरिजिन और लाइन के बीच में डिस्टेंस क्या था, सिंपल c का मॉड बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का रूट ओवर था। ये क्यों था, c का मॉड बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का रूट ओवर क्यों था, अगर ये ओरिजिन होगा, ये पॉइंट अगर ओरिजिन है तो ये 0,0 है, अगर ये 0,0 होता तो ये a टाइम्स 0 प्लस b टाइम्स 0, इसकी टोटल 0 हो गया। तो ये सिंपल c का मॉड बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का रूट, अगर डिस्टेंस बिटवीन लाइन एंड ओरिजिन है। ओके, देन डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। देखो पैरेलल लाइंस की क्या कहानी है, अगर x और y की कोफिशिएंट अगर से सेम है तो वी कैन से दिस इज पैरेलल। सपोज एक लाइन है ax प्लस by प्लस c1 इक्वल्स टू 0, ठीक है, और एक लाइन क्या होना चाहिए,
अगर दो ठो लाइन पैरेलल तो एक्स वाई का कोफिशिएंट सेम होना चाहिए। सिर्फ कांस्टेंट में थोड़ा सा डिफरेंस आ सकता है, लेकिन इसमें सेम होना चाहिए। मतलब ये भी तुम ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी टू इज इक्वल्स टू जीरो। तो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी वन इज इक्वल्स टू जीरो, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी टू इज इक्वल्स टू जीरो। दीज आर टू लाइन्स. These are two lines here. L1 is parallel to L2. Okay, they are the distance between them. ये दो ठो पैरेलल लाइन का इक्वेशन है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी वन और एक है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी टू इक्वल्स टू जीरो इक्वल्स टू जीरो. एंड द डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन्स, the distance between two lines L1 and L2 is simply d. अगर ये डिस्टेंस है, d इज इक्वल्स टू सिंपल C1 माइनस C2 का मॉड, C1 माइनस C2 का मॉड बाय अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट ऑफ, बाय अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट ऑफ, क्योंकि ए और बी दोनों का सेम है. The A, B are same. Simple A and B are same in case of parallel line. Okay, okay. So note कर लो इसको. Then position of points with respect to lines. मतलब एक पॉइंट का पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू अनदर लाइन क्या है. एक लाइन है आपका सिंपल ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू जीरो. यहाँ पे दो टू पॉइंट है, मान लो x1 कमा y1 और एक पॉइंट है x2 कमा y2. इन दोनों को ज्वाइन करो, सपोज ये एक पॉइंट पे P पे फॉर्म कर रहे हैं, P पे मीट कर रहे हैं इन द रेशियो लैम्बडा इज टू 1 रेशियो. तो P का पॉइंट हम निकाल सकते हैं. P का पॉइंट क्या होगा, सपोज P का पॉइंट x कमा y है और h कमा k मान लो h कमा k है, तो h इज इक्वल्स टू क्या होगा लैम्बडा x2 प्लस लैम्बडा इंटू x2 1 इंटू x1 बाय लैम्बडा प्लस 1. और k की वैल्यू क्या होगा सिंपली लैम्बडा इंटू y2 प्लस 1 इंटू y1 मतलब सिंपली y1 बाय लैम्बडा प्लस 1. तो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू जीरो. देखो ये एच के जो पॉइंट है, ये पी जो एच कमा के इज ए पॉइंट ऑन द लाइन. ठीक है, लाइन पे ही पॉइंट है कि नहीं, तो इसको हम सेटिस्फाई करा सकते हैं. अगर सेटिस्फाई करवा देंगे तो क्या होगा ए टाइम्स लैम्बडा x2 प्लस x1 बाय लैम्बडा प्लस 1. ठीक है, प्लस b times your lambda y2 plus y1 by lambda plus 1 प्लस c is equals to 0 है, c is equals to 0 है. तो लैम्बडा प्लस 1 को इधर भेज दो, 0 का हो जाएगा लैम्बडा a इंटू लैम्बडा x2 प्लस x1 प्लस बी इंटू लैम्बडा y2 प्लस y1 प्लस सी इंटू लैम्बडा प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0 है. सी इज इक्वल्स टू 0 है. तो हम लैम्बडा का वैल्यू निकालने के लिए हमें करना क्या पड़ेगा कि लैम्बडा अगर कॉमन लेंगे यहाँ ए x2 और बी y2 और प्लस सी है, प्लस सी प्लस ए x1 प्लस बी y1 प्लस सी इज इक्वल्स टू 0 है. सो वी कैन से लैम्बडा इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ ए x1 प्लस बी y1 प्लस सी
बाई ax2 प्लस by2 प्लस c। ये लैम्ब्डा का वैल्यू है, मान लो इतना लैम्ब्डा का वैल्यू है। देखो अभी क्या कहानी है, अगर लैम्ब्डा इज पॉजिटिव, अगर लैम्ब्डा की वैल्यू पॉजिटिव हुआ तो ये इंटरनल डिवीजन हुआ होगा। और इंटरनल डिवीजन मतलब जो बोथ पॉइंट है P1 एंड P2, ओके P1 P2 और ए बी मतलब ए बी, अगर ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, ए बी आर लाइज इन द ऑपोजिट साइड ऑफ द लाइन। ठीक है, अगर ये इंटरनल डिवीजन होगा तो इन दोनों के बीच में लाइन आ रहा है, मतलब P इज लाइज इन बिटवीन ए एंड बी, मतलब इंटरनल डिवीजन। इंटरनल डिवीजन होगा तो लाइन के एक पार में ए है, एक साइड में ए है और अनदर साइड में बी है। ओके, इफ सिंपल, इफ लैम्ब्डा इज पॉजिटिव then A and B lies in the opposite sides of lines in the opposite of line L, opposite sides of line L। opposite sides मतलब एक, अगर ए एक तरफ है, ए ऊपर है तो बी नीचे होगा, ए राइट में है तो बी लेफ्ट में होगा, उसी तरह से लैम्ब्डा पॉजिटिव होने से, लैम्ब्डा पॉजिटिव होने से। इफ लैम्ब्डा इज नेगेटिव, इस लैम्ब्डा इज नेगेटिव तो ए बी लाइज ऑन द, ए एंड बी लाइज इन द सेम साइड, सेम साइड ऑफ लाइन L, L की सेम साइड में होंगे अगर लैम्ब्डा की वैल्यू नेगेटिव होगा। इसका भी छोटा सा सिंपल है, आप करेंगे कैसे, सिंपली प्रोसीजर है, बहुत ही सिंपल प्रोसीजर है। सिंपल फाइंड, ओके, लाइन तुम्हें दिया है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0 और दो पॉइंट दिया है, एक है x1 y1 और एक दिया है b है x2 y2 दिया है। तुम्हें यही फाइंड करना है कि ये जो लाइन के एक साइड में दोनों ए बी हैं कि ओपोजिट साइड्स में, मतलब एक उधर है तो एक इधर है, उसी तरह कुछ आपको निकालना है, पोजीशन निकालना है। तो अब वो क्या करना है, सिंपल फाइंड ax1 प्लस by1 प्लस c एंड ax2 प्लस by2 प्लस c, ये दोनों चीज़ निकालो। फाइंड ax1 प्लस by1 प्लस c एंड ax2 प्लस by2 प्लस c। इफ साइंस आर, मतलब साइन ऑफ बोथ द टर्म्स आर, इफ मतलब इसको कुछ मान लेते हैं यार, ठीक है, इसको मान लेते हैं हम m और इसको मान लेते हैं n। सपोज if sign of m and n are same then a and b lies in same side, okay, a conclusion। and if the sign of a and b are, sign of m and n are opposite, sign of m and n are opposite, then a and b lies in opposite side, ओके। समझ में आया आपको? ओके, नोट कर लो इसको। So let us discuss this following question. The first question is, find the equation of lines which parallel to the line 3x plus 4y plus 7 equals to 0 and each at a distance 2 from it। ये बहुत सारे मेथड में हो सकता है। देखो, एक तो इसका स्लोप निकाल के भी कर सकते हैं, ठीक है, स्लोप निकाल के भी हम वी कैन इजीली फाइंड आउट। और अभी जो हम डिस्टेंस की जो फॉर्मूला हम देखे थे,
उसके बीच में देखो कंडीशन है कि छोटी सी बात बोला जाऊंगा कि ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू 0 है, और कोई आपको बोले कि ये एक पैरेलल लाइन का इक्वेशन बोलो विथ which is parallel to this ax plus by plus c equals to 0, मतलब the line which is parallel to this ax plus by plus c equals to 0 is equals to ax plus by plus c something else c dash is equals to 0, मतलब ये x की और y की जो कोफिशिएंट है वो पैरेलल लाइन के केस में सेम रहेगा, इक्वल रहेगा। नहीं तो प्रोपोर्शनल भी हो सकता है, लेकिन अगर प्रोपोर्शनल होगा तो उसको हम इक्वल बना सकते हैं, ठीक है। फिर भी देखो कि ये गिवन लाइन है आपका 3x प्लस 4y प्लस 7 इक्वल्स टू 0, ये आपका एक गिवन लाइन है, ठीक है। सो लेट 3x प्लस 4y प्लस c इक्वल्स टू 0 इज द रिक्वायर्ड पैरेलल लाइन। हमको जो चाहिए रिक्वायर्ड पैरेलल लाइंस, तो इस केस में हमें क्या चाहिए, बस c की वैल्यू, और c की वैल्यू हमें डिस्टेंस पता है, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन इज इक्वल्स टू c1 माइनस c2 का मॉड बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का रूट। इस केस में होगा कितना कि d इज इक्वल्स टू 7 माइनस c का मॉड बाय अंडर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना दिया है, इज इक्वल्स टू 2 है, टू डिस्टेंस 2 फ्रॉम इट। सो 7 माइनस c का मॉड 7 माइनस c का मॉड इज इक्वल्स टू ये कितना है 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, ये 25 का रूट मतलब 5 इंटू 2, ये 10 हो गया। तो 7 माइनस c का मॉड इज इक्वल्स टू 10। तो सिंपली 7 माइनस c और c माइनस 7 हो 7 माइनस c इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 10, क्योंकि मॉड है यहाँ, ठीक है। तो c की जो वैल्यू है वो डिफरेंट हो, c की वैल्यू एक 17 और एक वैल्यू है c की वैल्यू अगर ये माइनस 10 होता है प्लस 10 होता है तो 7 माइनस 10 इज माइनस 3। These are the two values, one is 17 and another is minus 3. So simple, the equation of lines is एक है 3x plus 4y plus 17 equals to 0 and 3x plus 4y minus 3 equals to 0. Okay, these are the answers of the first question. नोट कर लो। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 ये 1 है ये 2 है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ x प्लस 3y माइनस 1 इक्वल्स टू 0 एंड 3x माइनस y प्लस 1 इक्वल्स टू 0 and the centroid 3 comma minus 1 1 3 and 2 4. So passing through point of intersection of x plus 3y minus 1 equals to 0, x plus 3y minus 1 equals to 0 and your 3x minus y plus 1 equals to 0. इनको हम x और फर्स्ट हम निकालेंगे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस टू लाइन। फर्स्ट हम यही निकालेंगे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, फर्स्ट हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होगा फर्स्ट, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए हमें h और के वही जो फॉर्मूला था h इज इक्वल्स टू क्या था, h इज इक्वल्स टू फॉर्मूला था b1c2 माइनस b2c1 बाय a1 b2 माइनस a2 b1, और जो k की फॉर्मूला था c1 a2 माइनस c2 a1 बाय a1 b2 सॉरी a1
B2 minus A2 B1, और दिस इज द फॉर्मूला फॉर द K। ठीक है, तो H और K की वैल्यू हम निकाल देते हैं। तो H की वैल्यू क्या होगा, ये सिंपल A1 B1 C1 A2 B2 C2। ठीक है, B1 मतलब 3 टाइम्स C2 इज 1 माइनस B2 is -1, B2 is -1, and C1 is also -1 by A1 B2 minus A2 means 1 into -1, 1 into -1 minus 3 into 3। तो कितना हो रहा है ये भाई, तो एक है 3 और ये -1 बाय -1 -9, तो ऑब्वियसली 2 बाय -10 दैट इज -1/5। चेक कर लो थोड़ा सा, 3 -1 इज 2 और -1 -9 इज 10। ओके, तो K की वैल्यू क्या होगा, C1 A2 minus C2 A1, C1 into A2, C1 into A2 मतलब -1 into 3 माइनस A2 C1 मतलब सॉरी C2 A1 मतलब 1 into 1 बाय वो सेम 1 into -1 -3 into 3, तो होगा ये -3 और ये -1 -4 हो गया, तो ये -4 बाय -10 है, दैट इज नथिंग बाय 2/5। तो वो एक पॉइंट है -1/5, सो एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, यस, सो द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज -1/5, 2/5। अभी हम सेंट्रॉइड निकालते हैं, एंड पासिंग थ्रू सेंट्रॉइड ऑफ 3, -1 1 3 एंड 2 4, ये क्या होगा, तो सेंट्रॉइड का फॉर्मूला है A1 + A2 + A3/3 इज सिंपल 3 + 1 + 2/3, -1 -3 -4/3, सॉरी -1 + 3 + 4/3, तो ये कितना हुआ, ये 6/3 is 2, ये भी 6/3 is 2, 2, एक पॉइंट है -1/5, 2/5 और एक पॉइंट 2/2, ये दोनों पॉइंट से पास करते हुए वो ट्रायंगल जा रहा है, ये सॉरी ये वो लाइन पास कर रहा है। सो लाइन इज पासिंग थ्रू, सिंपली द लाइन इज पासिंग थ्रू -1/5, 2/5 एंड 2, 2। स्लोप कितना होगा, स्लोप इज 2 - 2/5, 2 - -1/5, तो ये होगा 10 - 2, 10 - 2 8/5, और ये है 10 11/5, तो कैंसिल, सिंपल 8/11। अब ये सिंपल एक फॉर्मूला पुट करते हैं इसी पॉइंट को, तो इक्वेशन ऑफ लाइन विल बी y - 2 इज इक्वल्स टू 8/11 इंटू x - 2। ओके, तो थोड़ा सा कैलकुलेट कर देते हैं, तो 11y - 22 इज इक्वल्स टू 8x - 16, तो 8x - 11y + 6 इज इक्वल्स टू 0, यही आपका आंसर है, यही आपका आंसर है। ठीक है, समझ में आया, ओके, बस आज के लिए इतना ही, दैट्स इट फॉर टुडेज क्लास। इन द नेक्स्ट क्लास वी आर गोइंग टू discuss some problem about the straight line. So bye bye, take care, see you in the next class.